Welcome back, dear viewers. Let us today we get started with one of the most important and demanding session, that is a session on G20. And in this very session, we will try to get a general idea about G20 and what G20 is all about. So, without wasting your precious time, let us we get started. The first question which strikes our mind is what is G20 and why this organization is called G20. So the answer lies here. Actually, G20 it means a group of 20, but this does not mean G20 is a group of 20 countries. In G20, there are 19 countries and an organization called the European Union. Thus, it makes a group of 20. That is why it is called G20. This G20 represents 60% of the world population, 75% of the world trade, and 85% of the gross domestic product. The second question which strikes our mind is how does it work? How does the system of G20 work? The answer lies here. This G20 works through two tracks. One is Sherpa track, another is a financial track. This Sherpa track deals with issues related with employment, related with climate change, related with agriculture and food security, related with anti-corruption measures, related with UN sustainable goals which are 17 in number, and related with improvement of healthcare. The second domain, which is financial track is the second track, deals with issues related with global economic growth, related with tax information exchange, related with financial regulatory reforms, related with financial inclusion, related with remittances across the world, related with fossil fuel subsidies, green finance, anti-terrorism financing. So these are the two tracks on which this G20 works. To get more information about G20 and its happenings in India and abroad, we have compiled certain multiple choice questions with proper explanation. So we will try to solve them one by one. फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट 2023? तो G20 समिट 2023 जो है इंडिया होस्ट कर रहा है प्रेजेंटली। तो ये आप फर्दर याद रखोगे कि जो G20 समिट 2023 है, 18th समिट है, इंडिया होस्ट कर रहा है। और इसी तरह से जो इसकी होस्टिंग सेरेमनी है न्यू दिल्ली में कंडक्ट की जाएगी प्रगति मैदान में 9th तो 10th ऑफ सितंबर 2023। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है चेयरमैन के तौर पर इसको होस्ट कर रहे हैं सितंबर में। और यहां पर आप याद रखोगे कि ये जो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स है, प्रेसिडेंसी के जो राइट्स हैं वो रहेंगे फ्रॉम 1st ऑफ दिसंबर 2022 से लेकर 30th ऑफ दिसंबर 2023। तो अभी जो इंडिया के पास होस्टिंग राइट्स हैं, प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है, तो 6 एजेंडाज आर देयर। तो 6 agendas are there for the India's G20 Summit 2023. First agenda is green development, climate, finance and lifestyle for environment. Second is accelerated inclusive and resilient growth. Third is accelerating progress on sustainable development goals. And fourth one is technological transformation and digital public infrastructure. Fifth is multilateral institutions for the 21st century. And sixth one is women-led development. These are the main agendas, that is called 6 agendas for which G20 presidency has been with India. Second question, who has unveiled logo, theme and website of India's G20 presidency? तो इसका आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, इन्होंने ही जो लोगो, थीम एंड वेबसाइट है G20 प्रेसिडेंसी की, इसका इनॉग्रेट किया हुआ है। और इंडिया के पास G20 प्रेसिडेंसी है, इसका जो लोगो है दैट इज लोटस, इसका लोगो है। और थीम है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, जिसे हम हिंदी लैंग्वेज में वासुदेवा कुटुंबकम के नाम से भी जानते हैं। फर्दर आप याद रखोगे कि यहां पर प्रेजेंट लोगो जो G20 का है, इसके 4 कलर्स हैं, सेफ्रॉन, व्हाइट, ग्रीन एंड ब्लू। और ये जो लोटस नीचे यहां पर रखा गया है, इट हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम द इंडियाज नेशनल फ्लावर दैट इज लोटस। फर्दर आप याद रखोगे G20 मीन्स ग्रुप ऑफ 20
and in this very group there are 19 countries and European Union. This G20 was founded in 1999. India is its founding member since 1999. Most importantly, during 2022 Indonesia was having the hosting rights, and in 2023 India is having the hosting rights, and in 2024 Brazil would be having the hosting rights for G20 Summit 2024. अब G20 इट इज अ ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, तो इस तरह से सभी कंट्रीज को याद रखना आसान नहीं है। तो एक छोटी सी ट्रिक अगर आप याद करते हो तो पूरा आपको आसान होता है। ट्रिक क्या है? गुरुजी सीता अब SCCI FCI में काम करती हैं। गुरुजी सीता अब SSC FCI में काम करती हैं। तो इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप सभी जो G20 के जो मेंबर्स हैं उनको आप सही तरह से आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। विच कंट्री होस्टेड 17th G20 Summit 2022? तो इसका आप याद रखोगे कि इंडोनेशिया ने जो 2022 की सेशन थी उसे होस्ट किया था G20 की। तो 17th सेशन ये थी। 15th एंड 16th नवंबर इंडोनेशिया बाली जो है कैपिटल इंडोनेशिया की वहीं पर हुई थी। लेकिन G20 22 समिट का जो थीम था that was recover together and recover stronger. Recover together, recover stronger was the theme of the G20 summit held in Indonesia in 2022. Next question, which IIT hosted Youth 20 consultation under the G20 presidency? इंडिया का कौन सा IIT था जिन्होंने Y20 कंसल्टेशन समिट होस्ट किया था? तो इसका आप याद रखोगे IIT कानपुर के नाम से। और यहां पर आप फर्दर याद रखोगे Y20 कंसल्टेशन जो है इट इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म दैट ब्रिंग्स यंग पीपल टुगेदर टू कनेक्ट, शेयर आइडियाज एंड देयर एक्सपीरियंसेस। Y20 कंसल्टेशन इज क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स सपोर्ट्स। यूथ अफेयर्स एंड सपोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर ही ये जो Y20 समिट है ये होस्ट किया है IIT कानपुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द शेरपा फॉर इंडिया G20 2023? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर याद रखोगे, अमिताभ कांत इज द शेरपा। अमिताभ कांत कौन थे? एक्स नीति आयोग CEO अमिताभ कांत। और ये शेरपा बनते हैं, ये आज हमारे पास G20 प्रेसिडेंसी है, इनके रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं ये। तो इनका काम होता है कि टू प्रिपेयर ऑल द समिट्स विच वुड बी होस्टेड इन इंडिया। विच सिटी होस्टेड फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ G20 प्रेसिडेंसी? तो इसका आप याद रखोगे उदयपुर। उदयपुर होस्टेड द फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ B20 बिजनेस 20 इंडिया समिट? तो इंडिया में जो B20 है बिजनेस 20 के चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज N चंद्रशेखरन। और ये जो चंद्रशेखरन है ये B20 बिजनेस 20 के प्रेजेंट चेयरमैन है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो B20 का ऑफिशियल फॉर्म है ये इस्टेब्लिश हुआ है सिंस 2010। इसके प्रेजेंट इंडिया में चेयरमैन है N चंद्रशेखरन। और ये जो N चंद्रशेखरन है टाटा सन्स के चेयरमैन है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यही आज जो बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग्स होती हैं अंडर दिस G20 उसे यही लीड कर रहे हैं। Another question, who has been appointed as the chairman of the C20? C20 के चेयरमैन किन को अपॉइंट किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माता अमृता नंदा माई। माता अमृता नंदा माई जो है ये चेयरमैन है C20 के। C20 मीन्स सिविल 20, इट इज एन ऑफिशियल एंगेजमेंट अंडर दिस G20। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी? तो ये जो B20 बिजनेस 20 की जो ये मीटिंग हुई थी किस स्टेट ने होस्ट की थी? तो इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर लिखोगे सिक्किम। सिक्किम इज ए स्टेट विच होस्टेड द B20 मीटिंग। सो B20 दैट इज बिजनेस 20 मीटिंग अंडर इंडिया G20 प्रेसिडेंसी होस्ट किया था सिक्किम की कैपिटल जो है गंगटोक, तो यहीं पर ये होस्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस 20 B20 इंसेप्शन मीटिंग हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गांधीनगर गुजरात में ये मीटिंग हुई थी। तो गांधीनगर गुजरात ही आप याद रखोगे। फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटेड G20 यहां पर हमने दी हुई है, बहुत सारी मीटिंग्स इंडिया में कंडक्ट की गई है। फर्स्ट G20 फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज मीटिंग ये हुई थी बेंगलुरु में। तो सेकंड इज T20 दैट इज थिंक 20 मीटिंग अंडर G20 हेल्ड इन भोपाल। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर दैट इज
Prime Minister Narendra Modi gifted Himachal Pradesh artifacts to world leaders at G20 presidency in Bali. बाली इंडोनेशिया में 2022 की जो समिट हुई थी, 17th समिट ऑफ G20, तो वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने सभी जो G20 के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको गिफ्ट किया था जो हिमाचल प्रदेश के आर्टिफैक्ट्स थे। तो वहां पर उसने क्या दिया था, उन्हें उन्हें दिया था कुल्लू शॉल एंड चंबा रुमाल जो है, ये इनको वहां पर गिफ्ट दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। First G20 Environment and Climate Sustainability Working Group meeting was concluded in Bengaluru, Karnataka. Another first G20 Energy Transition Working Group meeting was held in Bengaluru. First Sustainable Finance Working Group meeting was held in Guwahati, Assam. First G20 Health Working Group meeting was held in Kerala. First G20 Education Working Group meeting was held in Chennai, Tamil Nadu. First G20 Culture Working Group meeting was held in Khajuraho, Madhya Pradesh. First Digital Economy Working Group meeting was held in Lucknow, Uttar Pradesh, hosted by the Ministry of Electronics and Information Technology. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड द G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022। तो G20 मीटिंग जो थी होस्ट कर रहा था 2022 में इंडोनेशिया। तो सभी मीटिंग्स इंडोनेशिया में ही हुई थी, तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग भी इंडोनेशिया में ही हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इंडोनेशिया। तो फर्दर आप याद रखोगी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2022 वाज हेल्ड इन इंडोनेशिया। थीम ऑफ दिस G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाज बिल्डिंग ए मोर पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरियस वर्ल्ड टुगेदर। और इंडिया के बिहार पर एस जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, उन्होंने ही इंडिया के बिहार पर रिप्रेजेंट किया था इस G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ 2022 में। तो ये मोस्टली याद ही होगा आपको, विच फ्लावर हैज बीन यूज्ड इन द लोगो ऑफ G20 समिट 2023, दैट इज लोटस फ्लावर जो है, इसी को यहां पर इस्तेमाल किया गया है एज ए लोगो। तो हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर इन G20। तो कंट्रीज के रूप में आप सिर्फ 19 का ही आंसर याद रखोगे। 19 आर देयर कंट्रीज एंड इन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20। तो हमारे यहां पर 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है, वही हमने यहां पर आइडेंटिफाई करके हमारा वही आंसर आएगा। नाउ G20 समिट्स आर अटेंडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। तो जहां पर भी G20 मीटिंग बुलाई जाती है, तो वहां पर उसे रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं वही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। सेकंड, इंडिया नेवर होस्टेड एनी G20 समिट। तो अभी तक G20 समिट कभी भी इंडिया में हेल्ड नहीं हुई थी टिल 2023। तो ये स्टेटमेंट भी यहां पर राइट स्टेटमेंट है। इट इज मेन एम इज टू एलिमिनेट पॉवर्टी फ्रॉम द वर्ल्ड। तो इसका मेन एम सिर्फ पॉवर्टी को एलिमिनेट करना नहीं है, इसके और डिफरेंट एम्स भी हैं। इट इज मीटिंग्स आर हेल्ड एनुअली, तो इसकी मीटिंग्स भी एनुअली हो रही है। तो इसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन सी। G20 का एक ब्रॉड डोमेन, G20 का एक ब्रॉड डोमेन है, इसका सिर्फ मेन एम पॉवर्टी एलिमिनेट करना ही नहीं है। तो यही हमारा यहां पर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज G20 एस्टैब्लिश्ड। G20 वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1999। Which of the following cities organizing the recent G20 summit going to be held in 2023। तो इंडिया ही होस्ट कर रहा है, तो इसका आंसर इंडिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। तो इसका थीम है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द G20। तो इंडोनेशिया भी मेंबर है, मैक्सिको भी मेंबर है, टर्की भी मेंबर है। तो इसका राइट आंसर है सिंगापुर इज नॉट ए मेंबर कंट्री ऑफ G20। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग G20। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट नहीं है, वही हमारा आंसर रहेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट, इन द मीटिंग्स ऑफ G20 द यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूरोपियन कमीशन एंड बाय द यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यहां पर ये जो स्टेटमेंट है राइट स्टेटमेंट है। सेकंड, द G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर 85% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये भी यहां पर राइट है। द G20 इकोनॉमीज अकाउंट फॉर अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ये भी यहां पर राइट है। G20 economies account for about 40% of the world population। तो यहां पर होना चाहिए था 60% of world population, यहां पर लिखा हुआ है 40%। तो इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। फर्स्ट समिट ऑफ G20 वाज हेल्ड इन वाशिंगटन DC इन USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल डेट हाउ मेनी समिट्स हैव बीन हेल्ड। तो अभी तक G20 की कितनी समिट्स हेल्ड की गई है। तो अभी तक 17 समिट्स हेल्ड की गई है। तो इंडिया जो होस्ट कर रहा है इट इज द 18th समिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 17।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट G20? पहला स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 इज सपोर्टेड बाय द ट्राइका मेड अप ऑफ करंट इमीडिएट पास्ट एंड द फ्यूचर होस्ट कंट्री। तो यही पहला स्टेटमेंट हमारा यहां पर राइट है। सेकंड भी देखते हैं, द G20 हैज अ परमानेंट सेक्रेटरीट, ये यहां पर गलत स्टेटमेंट है। इन 2015 द G20 प्रेसिडेंसी इज हेल्ड बाय चाइना, ये भी यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है। द G20 प्रेसिडेंसी रोटेट्स एवरी 2 years, तो ये भी यहां पर गलत स्टेटमेंट है। G20 रोटेट्स एनुअली। तो यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज द G20 प्रेसिडेंसी सपोर्टेड बाय द ट्राइका मेड अप ऑफ करंट इमीडिएट पास्ट एंड द फ्यूचर होस्ट कंट्री। तो प्रेजेंट हमारा जो ट्राइका है दैट इज इंडोनेशिया, दैट इज कॉल्ड immediate past, current that is called India, and the future that is Brazil. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन विल इंडिया होस्ट G20? तो प्रेजेंट ही होस्ट कर रहा है, 2023 ही इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वायर इज द लोगो ऑफ G20 2023 समिट इंस्पायर्ड? तो इसका करेक्ट आंसर इज इंडियाज नेशनल फ्लैग। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 2023? तो G20 2023 का थीम है वासुदेवा कुटुंबकम, दैट इज कॉल्ड वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। दिस इज द थीम ऑफ G20 2023. So this was all in this today's session. Hope you all have enjoyed this session very well. We will be back in the next session. Till then, stay blessed. Allah Hafiz. Afi Amanillah.